Good evening, guys, and welcome to Grade Up. In today's session actually is in continuation of yesterday's session. कल के session में we discussed 12 important questions that featured in 2020 version of the CUCET examination. So we discussed 12 questions from CUCET's 2020 examination, and in continuation of yesterday's session, we will discuss from question number 13th onwards in today's session. But before proceeding with today's session, I have a small question. What is the date today? आज date क्या है? Can I get the answer in the chats? What is today's date? Okay, so you all students are preparing for BBA, for law and all other entrance examinations. So you are expected that आप लोग करंट हैपनिंग से, डेली हैपनिंग से अपडेट रहेंगे. इवन इफ यू आर डू नॉट नो द डेट, तो फिर आप इवेंट्स कैसे बताएंगे? अच्छा, मैं ही बता देता हूं. टुडेज डेट इज 10th of March, राइट. सो आज की हॉट न्यूज क्या है? विच इज द हॉट न्यूज फॉर टुडे, जो मॉर्निंग से ही न्यूज में चल रही है, बल्कि कल रात से ही चल रही है. इन ऑल न्यूज एडिटोरियल्स, ऑन ऑल न्यूज चैनल्स, देयर इज ओनली वन न्यूज विच इज टॉप ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, ऑन सोशल मीडियाज, एवरीवेयर. व्हाट इज दैट टॉप न्यूज फॉर टुडे? Can somebody tell कि आज की टॉप न्यूज क्या है? Which is the top notch news of the nation for today? Before proceeding with the session, I want to see कि कितने students daily current happening से updated रहते हैं. Because it's वो कहते हैं ना, it's the prime target for you. अगर आप current affairs के साथ ही updated नहीं रहते हैं, so how can you crack the examination? Okay, because current affairs is something which is pervasive का मतलब होता है applicable to all. So current affairs is a category, is a genre which is pervasive to all types of examination, whether you are preparing for law entrances या CM of Uttarakhand. So what happened with CM of Uttarakhand? CM साहब, okay, ठीक है. So students कर रहे हैं, students are updated with current happenings. So ठीक है, आप लोग मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे. टुडेज टॉप नॉच न्यूज इज कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह यादव, गलती से स्लिप हो गया. मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड यादव साउंड्स एक जैसे ना, सिनोनिम्स, सो आई स्लिप. त्रिवेंद्र सिंह रावत हैड रिजाइंड एज द सीएम ऑफ उत्तराखंड, एंड मिस्टर तीरथ सिंह यादव, नाम बहुत सिमिलर है, सो यू माइट गेट कंफ्यूज, तो याद रखना, मिस्टर तीरथ सिंह रावत हैड टेकन ओथ एज सीएम ऑफ उत्तराखंड इन प्लेस ऑफ मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत. ये टॉप न्यूज है. इस न्यूज पे थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करने के लिए देयर वुड बी सम स्पेसिफिक सेशंस फ्रॉम ग्रेड अप, एंड साथ साथ आई वुड सजेस्ट कि आप इस न्यूज को अच्छे से एनालाइज करें, रिसर्च करें इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, इन एडिटोरियल्स एंड एवरीथिंग एल्स. हाँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिजाइन किया है एंड उनकी जगह तीरथ सिंह रावत न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड है. इट इज अ टॉप नॉच न्यूज, एंड मुझे उम्मीद थी कि ये न्यूज सभी को पता होनी चाहिए, बिकॉज यू हैड टू बी अपडेटेड विथ करंट अफेयर्स इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जामिनेशंस ऑन विच यू आर फोकसिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन. ऑल्सो रिमेंबर द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि वो गवर्नर भी इस पूरा जो कंट्रोवर्सी हुई है, आई एम नॉट हियर टू डिस्कस द होल कंट्रोवर्सी, बट गवर्नर इज ऑल्सो a prime person in this controversy. So you need to remember, memorize, or just know the name of governor. It's your homework. You have to, या तो आप लोग अभी चैट्स में बताएं that what is the name of the governor, और get it know from different websites or anywhere. So अभी मैं गवर्नर का नाम नहीं बता रहा हूं. I am giving you as a homework कि आप मुझे बताएं what is the name of Uttarakhnd's governor. Can somebody tell? अगर अभी बेबी रानी, yes, Agni is right. बेबी रानी मौर्य, हाँ, मौर्य is a surname. Okay, बेबी रानी मौर्य is the full name of governor of Uttarakhand. You had to know about the whole controversy which is going there. Let's start with today's session. ये हमने कल स्लाइड डिस्कस की थी. These all are the examinations, the courses for which you can gain entrance by appearing in CUCET examination. Okay, हमने इन सभी courses में से कुछ important prime courses which were BA LLB, which were this BA LLB and BBA.
मैंने इसको कल भी पॉइंट आउट किया था, टुडे आई एम ऑल्सो पॉइंटिंग आउट, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस सेशन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ और बीबीए. तो ठीक है, फॉर दीज एग्जामिनेशंस फॉर एंट्रेंस टू दीज कोर्सेज यू हैव टू अपीयर इन CUCET एग्जामिनेशन. लेट्स कैरी फॉरवर्ड. ये हमने कल डिस्कस कर लिया था दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन CUCET 2020 एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेड चेंजेस that would be introduced in CUCET 2021. एंड ये सारी बातें हमने बताई on reliance of the statement made by Mr. Amit Khare, who is the Secretary of Higher Education in the Education Ministry. ठीक है, तो हम ये सभी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस सेशन, सो आई वुड नॉट मैं डुप्लीकेसी नहीं करूंगा इसको दोबारा से बता के. लेट्स कैरी फॉरवर्ड. एग्जाम पैटर्न भी हम डिस्कस कर चुके थे दैट द एग्जाम इज डिवाइडेड इन 4 डिफरेंट सेक्शंस. वो चारों सेक्शंस भी हमने बताए थे. एंड इन प्रीवियस क्लास दैट वाज यस्टरडे हमने 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. मेजॉरिटी ऑफ दोज क्वेश्चंस वर फ्रॉम जीके सेक्शन एंड सम क्वेश्चंस वर आल्सो फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन. तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सीरीज, दैट पार्ट 1, टुडे इज पार्ट 2 ऑफ दैट क्लास इन विच वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 and in continuation of that English section, and in the later part we will discuss some questions from logical reasoning that will be continued in part 3 as well. part 3 इसके बाद होगी. okay, because CUCET एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है. all questions can not be covered in one session, तो हम छोटे छोटे सेशंस में इन्हें कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13. इंग्लिश हम इंग्लिश में ही हमने खत्म किया था एंड वी आर कंटिन्यूइंग इट, कैरी फॉरवर्डिंग इट विद इंग्लिश ओनली. इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 13, एंड क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे is you must choose the appropriate word for the definition. There is a definition given in the question and you have to choose the word that is most perfect in context of that definition. Okay, so definition is work with another, किसी दूसरे के साथ वर्क करना. What is the right answer? Collaborate, corroborate, cooperate या paired? Agni is saying A, Uttam is saying A, Yashasvi C, Suresh A. So majority of people are saying A. Some people are saying C as well, but the right answer is A, that is collaborate. Collaborate means collab करना. When for instance जब दो कंपनीज एक साथ मिलकर काम करती हैं या फिर कोई भी दो इंडिविजुअल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, so they are known as कि उन्होंने collaboration किया है, collaboration. So collaboration means when two people work with each other in order to attain a common object. That is collaborate, which means work with another. इजी क्वेश्चन था, इट वॉज एन इजी क्वेश्चन. एक मैं जस्ट फॉर अ रिवाइंड, मैं वो 12 क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको याद होंगे. फॉर इंस्टेंस वी डिस्कस्ड अबाउट अल्फांसो मैंगो, जो बहुत इजी क्वेश्चन था. एक टॉलेस्ट स्टैचू, दैट वाज आल्सो एन इजी क्वेश्चन. एंड द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, जो कि एक टफ क्वेश्चन था. विच वॉज एक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था दैट विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दैट वॉज द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन फॉर यस्टरडे फ्रॉम जनरल नॉलेज सेक्शन अकॉर्डिंग टू मी. तो ये एग्जामिनेशन बिल्कुल मिक्सअप रहा है ऑफ वेरी इजी क्वेश्चन एंड ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन. तो इसमें द स्ट्रेच ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज क्वाइट बिग. बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन भी आते हैं. सो we have to prepare it smartly, और उस smart preparation के लिए we are discussing questions right here. Let's come to the next question, that is Dr. Sharma conducted his speech dash stressing on Buddha's teaching of the importance of clarity. What is the right answer? Dr. Sharma concluded his speech by, with, at or in. What is the right answer? A. Okay, most of the people are saying A, that is by. Okay, Dr. Sharma concluded his speech with stressing on Buddhist. ये तो बिल्कुल ही absurd statement हो गई, so with को हम हटा सकते हैं. At, in, by is the right answer. And why? Because stressing is a verb. Stressing क्या है? It is a verb. Okay, verb को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? Verb in Hindi is known as क्रिया. क्रिया मतलब when a person does something, जब एक इंसान कोई काम करता है, it is called verb. हिंदी में क्रिया. क्रिया मतलब सीधे सीधे काम करना. यहां पे डॉक्टर शर्मा का जो क्रिया थी, जो वर्ब था, दैट वाज स्ट्रेसिंग. उन्होंने स्टेटमेंट पे स्ट्रेस किया. स्ट्रेस इज द वर्ब, और वर्ब हमेशा किया जाता है ना. सो व्हेन आई डू समथिंग, तो बाय इज द ओनली वर्ड दैट वुड सूट विद अ, बाय इज द ओनली वर्ड दैट विल सूट
with such a verb. That's why by is the right answer. अगर आप बाकी के तीनों को इस स्टेटमेंट में सीधे सीधे लगाकर भी देखें, इसको एड ऑन करके देखें, देन द स्टेटमेंट वुड बी एन एब्सर्ड स्टेटमेंट, जो कि ग्रामेटिकली एब्सर्ड होगी एंड सुनने में भी एब्सर्ड लगेगी. सो इट्स एन इजी क्वेश्चन जिसमें बाय इज द राइट आंसर. लेट्स सी. यस, बाय इज द राइट आंसर. Okay, so everyone was correct for this. Idioms and phrases. Some questions are from idioms and phrases as well. So we have included some questions from CUCET's 2020 examination that were asked from idioms and phrases. Actually CUCET में तो 100 questions थे, but we are trying कि हम हर एक कैटेगरी को include करें in our प्रेजेंटेशंस. दैट्स वाई हम हर कैटेगरी से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, उन क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट आउट करके आपके आगे प्रेजेंट कर रहे हैं एंड डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए, एक रफ आइडिया हो जाए कि व्हाट इज CUCET एंड व्हाट इज द एक्चुअल पैटर्न ऑफ CUCET टिल 2020. ऑल्दो पैटर्न माइट चेंज, बट पैटर्न सिमिलर तो रहेगा ना. बिल्कुल 2020 से चेंज तो कर नहीं देंगे. 2020 में थोड़े अल्ट्रेशन करके 2021 पैटर्न आएगा. बट ओके, सो सबने मुझसे पहले ही क्वेश्चन पढ़ भी लिया एंड एवरीवन इज सेइंग सी, सम पीपल आर सेइंग ए. लेट मी रीड द क्वेश्चन. आई एम जस्ट अ स्मॉल फ्राई इन द ऑफिस. अ स्मॉल फ्राई, ओके, इट इज द हाईलाइटेड वर्ड. सो ये एक ईडियम है एंड इस ईडियम का एक्चुअल मीनिंग यू हैव टू चूज. मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग सी एंड सम आर सेइंग ए. सो सी एंड ए के बीच कंफ्यूजन है. स्मॉल फ्राई कैन नॉट बी अ पियोन. पियोन, स्मॉल फ्राई का मतलब क्या होता है? एक फ्राई मीन्स एक छोटा सा बर्तन. फ्राई पैन पड़ा होगा आपने, तो एक छोटा सा बर्तन रसोई में ऐसे ही पड़ा रहता है, वो कभी यूज भी नहीं होता. सो अ स्मॉल फ्राई सिंपली मीन्स एक ऐसी चीज जिसका इतना ज्यादा यूज ना हो या फिर जिसकी कोई ज्यादा वैल्यू ना हो. सो ऑप्शन नंबर सी विच सेज अ पर्सन ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, जिसकी वैल्यू नहीं है, दैट इज द राइट आंसर. हम इसको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड विद सेंसेस ऑल्सो. मतलब अगर हम अपने सिर्फ माइंड की सेंसेस का ही काम करें, इवन इफ वी डू नॉट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इडियम्स, तो हम सिर्फ अपनी थिंकिंग एबिलिटी से राइट आंसर तक आ सकते हैं. पियोन कैन नॉट बी द राइट आंसर. इट इज अ नाउन, और नाउन जो होते हैं इनका बेसिकली इडियम से बहुत कम कनेक्शन होता है. ओके, जोकर इज ऑल्सो अ नाउन. स्मॉल क्रिएचर इज ऑल्सो अ नाउन. ठीक है. सो ये इंग्लिश के सेक्शंस में यू वुड बी टॉट कि नाउन्स के साथ इडियम्स आर इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नाउन्स आर कनेक्टेड विद इडियम्स. ओके, सो अ पर्सन ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, ओनली दिस थिंग कैन बी द राइट आंसर. ओके, सी इज द राइट आंसर. लेट्स कम टू राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. Find out which of the answer choices completes the same relationship with third word. तो थर्ड वर्ड है यहाँ पे. कंफ्यूज मत हो जाना इन द डायरेक्शंस. व्हाट डज द थर्ड वर्ड मीन्स? ओके, यहाँ थर्ड वर्ड लिखा है, वर्ड तो बहुत सारे हैं, ऐसे तो थर्ड वर्ड 2 हो जाएगा, बट आपको राइट आंसर 2 के साथ रिलेशनशिप में नहीं देखना है. फर्स्ट वर्ड इज रेस्टोरेंट, सेकेंड वर्ड इज मेन्यू, थर्ड वर्ड इज लाइब्रेरी. इट इज द थर्ड वर्ड. ओके, so the directions of the question is saying that find out which of the answer choices completes the same relationship with the third word. जो फर्स्ट वर्ड एंड सेकंड वर्ड की रिलेशनशिप है, वही वर्ड थर्ड वर्ड के साथ होनी चाहिए राइट आंसर की, विच वुड बी द फोर्थ वर्ड. सो थर्ड वर्ड के साथ कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे, मेरे पास ये पर्सनली डाउट्स आए थे. दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं इसको अलग से क्लैरिफाई कर दूं दैट व्हाट डज थर्ड वर्ड एक्चुअली मीन. ओके, सो रेस्टोरेंट इज टू मेन्यू. रेस्टोरेंट में क्या होता है? रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है ना, बट व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्टोरेंट? एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्टोरेंट इज फूड. ओके, एंड नॉट मेन्यू. मेन्यू तो वो मेन्यू प्रोवाइड्स अ डिटेल ऑफ द फूड अवेलेबल इन दैट रेस्टोरेंट. सिमिलरली लाइब्रेरी का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? जिस तरह रेस्टोरेंट में फूड मिलता है, लाइब्रेरी में बुक मिलती है. बट यहां पे रिलेशनशिप रेस्टोरेंट की मेन्यू के साथ बतानी है. तो समथिंग विच इज सिमिलर टू लाइब्रेरी सिमिलरली एज अ मेन्यू इज इन अ रेस्टोरेंट. सो व्हाट इज द राइट आंसर? पीपल आर सेइंग ए. एवरीवन इज सेइंग ए. बुक, मैंने अभी बताया, दोबारा बता देता हूं कि बुक इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइब्रेरी. जो लाइब्रेरी में मिलता है उसे बुक क्या, वो होती है बुक. रेस्टोरेंट में जो मिलता है उसे फूड कहते हैं. बट यहां पे रेस्टोरेंट का रिलेशनशिप मेन्यू से बताना है. तो उसी तरह लाइब्रेरी से द राइट आंसर वुड बी कैटलॉग एंड नॉट बुक. यू ऑल आर रॉन्ग.
ठीक है, कृष्ण यू आर राइट, बी कैटलॉग, बिकॉज रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है एंड मेन्यू प्रोवाइड्स अ डिटेल ऑफ ऑल द फूड अवेलेबल इन दैट रेस्टोरेंट. सिमिलरली लाइब्रेरी में कैटलॉग होता है एंड दैट कैटलॉग प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ ऑल द बुक्स अवेलेबल इन दैट लाइब्रेरी. ओके, सो अगर यहां पे मेन्यू की जगह फूड होता देन अनडाउटेडली द राइट आंसर वुड हैव बीन बुक, बट क्योंकि यहां पे मेन्यू है इसलिए राइट आंसर कैटलॉग होगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, आंसर इज बी. एक्सप्लेनेशन भी है एक छोटा सा. अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट यू कैन बाय, सी एक्सेट्रा समवेयर. सो अ लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स दैट यू कैन सी इन द लाइब्रेरी इज अ कैटलॉग. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही थर्ड वर्ड के साथ सेम रिलेशनशिप होनी चाहिए. फोर्थ वर्ड दैट इज आंसर की, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड के बीच है. सो द क्वेश्चन इज डांसर इज टू स्टेज. अ डांसर इज टू स्टेज. सिमिलरली अ प्रीचर इज टू, व्हाट इज द राइट आंसर? असेंबली, स्टेट, पुलपिट और चर्च. शबनम इज सेइंग ए, सागर इज सेइंग ए. सागर ने तीनों बार ए और एक बार बी लिखा है, सो ही माइट बी कंफ्यूज के असेंबली एंड स्टेट के बीच. ओके, एवरीवन इज सेइंग ए एंड बी. एनी अदर guesses or shall I tell the right answer? Some people are saying D. Okay, actually the right answer is pulpit. Okay, a dancer performs on stage. Dancer perform का करता है स्टेज पे. So similar relationship एक preacher. Preacher means a person who delivers speeches. Okay, वो कहाँ preach करता है? He delivers his speech from the podium and podium is also known as pulpit. Pulpit is the stage for a preacher. जैसे डांसर स्टेज पे परफॉर्म करता है, प्रीचर परफॉर्म्स, दैट इज डिलीवर्स हिज स्पीच ऑन अ पुलपिट. एज अ डांसर परफॉर्म्स ऑन स्टेज, वेयर एज अ प्रीचर परफॉर्म्स ऑन द पुलपिट. बाकी के तीन रॉन्ग है. ओके, सो अंडरस्टूड कि किस तरह रिलेशनशिप्स निकालनी है. दीज क्वेश्चंस आर अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एज वेल एज योर लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि यहां पे आपको हमको लॉजिकल रीजनिंग भी अप्लाई करनी पड़ रही है एंड इंग्लिश स्किल्स तो अप्लाई हो ही रही हैं. इवन इफ वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, देन हाउ कैन वी गेट टू द राइट आंसर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the following questions, choose the word that means the exact opposite of given words in the capital. Capital में जो words हैं, इसका opposite बताना है, that is antonym. Okay? You have to choose the right answer, which is antonym of the capital word and not synonym. So exodus, what is the antonym of, that is opposite of exodus? Influx, return, restoration or exit. What is the right answer? I've got no answer right now. हार्ड क्वेश्चन है क्या? तो सबसे इजी क्वेश्चन है. एक्चुअली मुझे एक्सोडस का मीनिंग नहीं पता था, बट मुझे याद आ गया इन अ न्यूज़पेपर रिसेंटली. मैं एक्सोडस एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक्सोडस वाज यूज्ड. एक्सोडस वाज यूज्ड इन रिलेशन टू, मैं एक हिंट दे देता हूं, इन रिलेशन टू तिब्बतियंस, दलाई लामा. नाउ कैन समवन टेल कि एक्सोडस का मतलब क्या है? पीपल आर सेइंग ए, सम पीपल आर सेइंग बी. Most of you are saying A. Okay, राइट आंसर पे आने से पहले टेल मी कि एक्सोडस का मतलब क्या है, अगर किसी को पता है तो. इवन आई डिडंट न्यू द राइट आंसर ऑफ एक्सोडस, बिकॉज मुझे रीडिंग हैबिट है, इसलिए न्यूज़पेपर में एक्सोडस वर्ड को रीड करके नाउ आई कैन इंटरप्रेट दैट व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर एंड व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स. अभी रिसेंटली आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल रिगार्डिंग द दलाई लामा एंड द तिब्बतियंस मूवमेंट टू इंडिया. ओके, तो उसमें द वर्ड फॉर देयर मूवमेंट वॉज यूज्ड एज एक्सोडस, कि उन्होंने तिब्बत से डिपार्ट किया एंड दे टुक अ रिफ्यूज इन इंडिया. दे आर रिफ्यूजेस इन इंडिया ना. ओके, सो एक्सोडस मीन्स एक मास डिपार्चर एक पर्टिकुलर प्लेस से. एक पर्टिकुलर प्लेस से जब बहुत सारे लोग डिपार्ट करते हैं ना, छोड़कर जाते हैं, देन इट्स नोन एज एक्सोडस. लाइक इंडिया पार्टीशन टाइम पर इंडिया से पाकिस्तान के टुवर्ड्स एंड पाकिस्तान से इंडिया के टुवर्ड्स एक्सोडस हुआ था. सिमिलरली तिब्बत से दलाई लामा एंड उनकी पूरी गवर्नमेंट का अराउंड 80,000 तिब्बतियंस थे, जो कि अब तक की लार्जेस्ट रिफ्यूजी मूवमेंट्स में से एक है. सो उन्होंने एक्सोडस किया था. द वर्ड्स फॉर देयर मूवमेंट वॉज used in the newspaper as exodus. तो मुझे उसकी वजह से exodus का मतलब याद हो गया. Even I didn't knew the dictionary meaning, ना मैंने डिक्शनरी में वर्ड कभी पढ़ा था. So exodus means mass departure from a place. तो अब हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है which means mass arrival to a place. Okay, जैसे दलाई लामा का exodus हुआ था from तिब्बत and now he is in धर्मशाला in India. So इंडिया में उनका इनफ्लक्स हुआ था.
अगर दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय सम मेंटल थिंकिंग ऑल्सो कि एक्स एंड इन, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिसमें अगर एक्स आ रहा है तो उसके ऑपोजिट की स्टार्टिंग इन से ही होगी। ओके, मतलब आप देखना इसमें एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, देयर इज अ वर्ड एक्सटीरियर, इसका ऑपोजिट क्या होता है? एक्सटीरियर का ऑपोजिट होता है इंटीरियर। ओके, सिमिलरली एक्सटर्नल का ऑपोजिट क्या होता है? इंटरनल। तो जब भी कोई वर्ड में एक्स से स्टार्ट हो रहा है तो काफी बार, मतलब मैं नहीं कहूंगा कि एवरी टाइम इट्स अ करेक्ट, क्योंकि एक छोटी सी ट्रिक है, एंड ट्रिक हमेशा 100% आपको गारंटी नहीं देती है दैट इट वुड टेक यू टू द राइट आंसर, बट ये ट्रिक्स काफी बार मदद कर जाती हैं इन सच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। टाइम भी कम होता है, सो अगर आपको एक्सोडस का ऑपोजिट ढूंढना है तो देयर आर चांसेस कि उस ऑपोजिट की स्टार्टिंग इन से हो। तो हम ऐसे एक छोटी सी ट्रिक से भी, अगर हमें राइट आंसर नहीं पता है तो हम आ सकते हैं कि एक्सोडस का ऑपोजिट होगा इनफ्लक्स। वैसे इनफ्लक्स का मीनिंग होता है मास अराइवल टू अ प्लेस, जब बहुत सारे लोग एक जगह अराइव करते हैं। फॉर इंस्टेंस दलाई लामा ने एक्सोडस किया तिब्बत से एंड उन्होंने इनफ्लक्स किया इंडिया में। ओके, सो ए इज द राइट आंसर। ये मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई है, आई होप कि ये ट्रिक हेल्पफुल होगी। एक्स एंड इन याद रखना। ओके, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद एक्स देन उसका ऑपोजिट इन से हो सकता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटीरियर, इंटीरियर। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड दैट मीन्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट। हाँ भाई, ऑपोजिट। बढ़िया ट्रिक बताए हैं सर आप, थैंक यू यशस्वी। तो ऐसी ट्रिक्स मैं बताता रहूंगा, मुझ पे ऐसी काफ़ी ट्रिक्स हैं, और जैसे जैसे मुझे ट्रिक्स याद आएंगी पढ़ाते पढ़ाते, आई विल कंटिन्यू टू inform you all this such type of tricks. Okay, so हाँ, मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सपेंड। ओके, ये सेम है तो इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक्सपेंड का ऑपोजिट क्या होगा? व्हाट डज एक्सपेंड मीन्स? एक्सपेंड का ऑपोजिट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड, ये इट इज एन इजी क्वेश्चन एंड आई एक्सपेक्ट कि सब लोग राइट आंसर बताएंगे इसका। कन्वर्ट, कंडेंस, कंजेस्ट और कंक्लूड। व्हाट इज द राइट आंसर? Sahil is saying B. Hamad Mirza is saying C. Swati B. Hamad C. Okay, C and D में confusion है, C and B में, और एक स्टूडेंट ने D भी बोला है, conclude. C क्या है? C is congest and A भी बहुत लोगों ने बोला है ना, A is convert. Okay. So you all think that congest is the opposite of expand. What does expand means? Expand मतलब अपनी reach बढ़ाना, सीधे सीधे। Expand means reach बढ़ाना, expansion होना। So the opposite would be similar to meaning of expand का क्या होता है? इसको condense होना। Have you, if you are a science student तो आपको condense का मतलब पता होगा। What is the process of condensation? मैं सब कुछ ट्रिक से ही बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आई एम ऑल्सो नॉट वेल वर्स्ड अबाउट दिस ग्रामेटिकल नॉलेज, तो मैं इन सभी क्वेश्चंस को ना ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूं, वो सॉल्व भी हो रही है। अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर इज कंडेंस, एंड मैं इसके पीछे की रीजनिंग बताऊंगा दैट व्हाई आई एम सेइंग दैट कंडेंस इज द राइट आंसर। इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट नहीं भी हो तो 10th क्लास तक तो साइंस सभी ने पढ़ी है, एंड उसमें हम ये पढ़ लेते हैं। व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है व्हेन अ गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। जब एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। इट इज कंडेंसेशन इज ऑपोजिट ऑफ कंडेंसेशन इज ऑपोजिट ऑफ, कोई बता सकता है दैट व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ कंडेंसेशन इन दैट साइंटिफिक वर्ड? नो वन। मैं बताता हूं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का ऑपोजिट कंडेंसेशन होता है। इवेपोरेशन में अ लिक्विड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, जब पानी भाप बन के वेपर में बन जाता है, वेपोराइज हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। एंड जब वो गैस मतलब वेपर वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, सो इसमें क्या होता है, साइंस में अगर पढ़ा होगा, गैस का एक्सपेंशन ज्यादा होता है। गैस अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी की है तो इस पूरे रूम को कवर कर लेगी, बट जब वो गैस वाटर में कन्वर्ट होगी, व्हेन दैट वेपर वुड बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो वो छोटी सी एक ड्रॉपलेट बन जाएगा पानी की, जो एक थोड़ी सी जगह गिरेगा, तो इट वुड बी एक्सपेंडेड फॉर्म। गैस क्या है? गैस में क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, सो इट इज इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ऑन सेकेंड साइड अगर हम इसकी बात करें वाटर की, सो वाटर में पार्टिकल्स आर क्लोजली लोकेटेड, सो इट इज कंडेंस्ड, ये पास होते हैं। सो हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं दैट कंडेंस मीन्स बहुत क्लोजली
सिचुएट होना, एक्सपेंशन का ऑपोजिट हो गया. सो दैट्स हाउ आई गॉट द राइट आंसर. लेट्स सी मेरा रीजनिंग एंड मेरा राइट आंसर सही है भी या नहीं, बिकॉज आई हैव ऑल्सो रेड दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम. यस, कंडेंस इज द राइट आंसर. आई वॉज राइट. एंड कंडेंस मीन्स टू मेक कॉम्पैक्ट और डेंस, डेंस कर देना. सो दैट्स हाउ मैंने सॉल्व किया. कंडेंसेशन से मैंने इसको कनेक्ट किया एंड कंडेंसेशन का मतलब मुझे पता था. सो आई गॉट द राइट आंसर. एक्सपेंड का उल्टा. ओके, हाँ, इवेपोरेशन. ओके, बट यू गेव थोड़ा लेट आंसर, तो क्योंकि मैं पहले ही दे चुका था. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड दैट मीन्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट. ओके, ऑपोजिट ही है इसमें भी, सेम वो. फ्रॉड्यूलेंट, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फ्रॉड्यूलेंट? कैंडिड, फॉल्थराइट, डायरेक्ट और जेन्युइन. व्हाट इज द राइट आंसर? कैन आई काउंट टिल 10? बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि 100 on 100 सही होगा सभी का. 10 सेकेंड्स लेते हैं. 1 2 3 4 5 6, people are saying D, 7 8 9 10. ओके, जेन्युइन. एक ही आंसर आया है सिर्फ डी. कैफ इज सेइंग ए, सिद्धार्थ इज सेइंग बी. ओके, सिद्धार्थ इज सेइंग बी, फोर्थराइट. ये भी नहीं समझ में आया. फ्रॉडुलेंट, इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट तो एटलीस्ट आपको पता होगा. फ्रॉड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चीटिंग. इट इज अ क्राइम अंडर इंडियन पीनल कोड. फ्रॉड का मतलब क्या होता है? किसी को भी पागल बनाना, चीट करना. तो फ्रॉड का ऑपोजिट क्या होगा? ओके, फॉर इंस्टेंस अ पर्सन इज फ्रॉड, तो हम उसको फ्रॉड कहेंगे. एंड उसके ऑपोजिट जो एक इंसान सही होगा, इफ अ पेपर इज, फॉर इंस्टेंस हम जो फॉल्स्ड पेपर्स होते हैं, गलत पेपर्स, झूठे पेपर्स, उन्हें हम बोलते हैं फ्रॉड पेपर. एक्चुअली फॉल्स्ड बोलते हैं, बट फॉल्स्ड कम्स फ्रॉम फ्रॉड. ओके, तो फ्रॉड का ऑपोजिट क्या होगा? इसमें तो मुझे लगता नहीं कि एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत है. द राइट आंसर इज जेन्युइन. Okay, all three are nowhere related. Neither they are opposite nor they are similar to fraudulent. Okay, these three words, candid, forthright and direct, they are nowhere related to fraud, and genuine is the opposite of fraudulent. So it is the right answer. Let's come to the next question. Here the directions have changed, so let's read the directions first of all. In each of these sentences given below, a word is printed in bold. A word is printed in bold, वो highlight भी कर दिया है हमने for our convenience. अब word, but question में ये word highlighted नहीं होगा, neither it would be underlined. वो सिर्फ bold होगा, बाकी सब part bold नहीं होगा, and that word would be bold. So a word is printed in bold. Pick up the one which is most nearly the same in meaning as the word printed. अब तक हमने opposite किए थे ना, अब तक हमने antonym किए थे. Now it would be synonyms. Synonyms पूछेंगे. A word which is similar to this word. Okay, and वो मतलब that word can be a mix of two words as well. जैसे mudslinging. So question number 1 पे आते हैं. Politicians should not indulge in mudslinging. What is the right answer? Quarreling, mockery, slander और yelling. अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप इसका राइट आंसर बहुत इजीली बता देंगे, बिकॉज यू माइट हैव रेड डिफेमेशन ना. ओके, सो कैन समबडी टेल द राइट आंसर? कैन आई हैव द राइट आंसर इन द चैट बॉक्स? सी, स्लैंडर. यशस्वी सिंह सी, माधुरी सिंह सी. लेट्स सी कि आपका आंसर राइट है या नहीं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग राइट. अंशिका, शायद आपका गलत है. आंसर इज सी. मैं इसका बता देता हूं कैसे. व्हाट डज मड स्लिंगिंग मीन्स? मड स्लिंगिंग मीन्स, मड मीन्स कीचड़, स्लिंगिंग मीन्स उछालना, कीचड़ उछालना. जब हम किसी की बेइज्जती करते हैं, उसको डिफेम करते हैं, इट मीन्स हमने उनकी इज्जत पर कीचड़ उछाला. वी हैव मड स्लिंग्ड देम. ओके, सो द राइट आंसर इज स्लैंडर. डिफेमेशन, इफ यू हैव रेड, तो डिफेमेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. डिफेमेशन इज द सिनोनिम. यहां पे हमें ऑपोजिट नहीं ढूंढने, यहां पे हमें सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं, सिनोनिम्स ढूंढने हैं. सो मड स्लिंगिंग मतलब किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालना. उसका सिनोनिम क्या होगा? डिफेमेशन वुड बी द सिनोनिम. डिफेमेशन मींस डिग्रेड करना किसी के फेम को. ये इन दो वर्ड से बना है. डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन पढ़ा है. फॉर इंस्टेंस एफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ उगाना. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ काटना. ओके, जैसे पेड़ रिड्यूस करना डिफॉरेस्टेशन होता है, वैसे किसी की फेम को. अब फेम वर्ड से ही फेमस वर्ड बना है. कोई फेमस होता है मतलब उसकी फेम बहुत ज्यादा है. तो किसी की फेम को डिग्रेड करना, डी से, डी स्टैंड्स फॉर डिग्रेड. किसी की फेम को डिग्रेड करना इज कॉल्ड डिफेमेशन. हम इस तरह वर्ड याद कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस होमिसाइड एक वर्ड है. आई एम जस्ट गिविंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्योंकि मुझे लग रहा है दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. होमिसाइड का मतलब क्या होता है? कैन समबडी टेल दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमिसाइड?
homicide means human killing. Homi means human and side means killing. Homi means human and side means killing. Okay, so homicide etymologically means human killing. Similarly, अगर हम एक इन्फेंट को मारते हैं तो क्या होगा? इन्फेंटिसाइड. जब एक छोटे बच्चे की डेथ, किसी को ही मार देता है एक छोटे बच्चे को, इन्फेंट को, देन इट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड. जब एक बहुत ज्यादा मास को कोई मारता है, देन इट इज कॉल्ड जीनोसाइड. तो अब जब आपको इस तरह के वर्ड्स नजर आएंगे, उसमें अगर साइड वर्ड यूज हो रहा है तो याद रखना साइड मीन्स किलिंग. तो समथिंग विच वुड बी similar to that word would the right answer would be something जिसमें kill word use हो रहा है. Okay, homicide, genocide, infanticide, etc etc. Okay, coming to the right question, हमने mudslinging की बात की. Mudslinging is a synonym of defamation. Defamation मतलब degradation of someone's fame. स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, बट ठीक है मैं ठीक कर देता हूं. डिफेमेशन. ओके, डिफेमेशन इज ऑफ टू टाइप्स. कितने टाइप? दो टाइप का डिफेमेशन होता है. कैन समवन टेल दैट व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डिफेमेशन? एक तो स्लैंडर ही हो गया, बिकॉज स्लैंडर इज अ टाइप ऑफ डिफेमेशन, दैट्स व्हाई इट्स द राइट आंसर. लॉ स्टूडेंट्स को ये पता होगा, एंड अगर किसी को नहीं पता कि स्लैंडर इज अ टाइप ऑफ डिफेमेशन तो वो राइट आंसर इसमें दे ही नहीं सकता था. व्हाट इज द अदर टाइप ऑफ डिफेमेशन? व्हाट इज द अदर टाइप ऑफ डिफेमेशन? फर्स्ट इज स्लैंडर एंड सेकंड. फर्स्ट तो हो गया स्लैंडर. व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ डिफेमेशन? हाँ, स्लैंडर होता है. व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ डिफेमेशन? लाइबल. हाँ, लाइबल इज द राइट आंसर. लाइबल. ओके, तो ये दोनों ही डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स होती हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि स्लैंडर इज अ स्पोकन डिफेमेटरी स्टेटमेंट. हम इसको याद कैसे करेंगे? स्लैंडर के लास्ट में ईयर टाइप आ रहा है ना, ईयर, समथिंग विच इज एड्रेस टू ईयर. जैसे मैंने कुछ बोला एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट, तो वो तो सुनने वाले के कान में ही गया ना, ही डिडंट सॉ इट. तो यहां पे लास्ट में स्लैंडर, ईयर आ रहा है लास्ट में, सो स्लैंडियर, हम ऐसे इसको बोलते हैं स्लैंडियर, बिकॉज इट इज एड्रेस टू द ईयर. इट इज अ स्पोकन डिफेमेटरी स्टेटमेंट. ऑन द सेकंड हैंड, लाइबल क्या होता है? लाइबल इज अ रिटन डिफेमेटरी स्टेटमेंट. अगर मैं किसी के बारे में कुछ डिफेमेटरी स्टेटमेंट लिख दूं, देन इट वुड बी लाइबल. लाइबल में क्या आ रहा है? लाए, लाइबल आए आ रहा है, लाइबल आए. ओके, सो इट इज समथिंग विच इज एड्रेस टू द आई. आर रिटन डिफेमेटरी स्टेटमेंट इज लाइबल. तो स्लैंडर एंड लाइबल दोनों डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, एंड इट इज समथिंग रिलेटेड टू डिफेमेशन, दैट्स व्हाई स्लैंडर इज द राइट आंसर. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, बिकॉज CUCET लॉ के लिए भी एंट्रेंस लेता है. तो आई थिंक दिस क्वेश्चन वॉज स्पेसिफिकली फॉर लॉ स्टूडेंट्स. ओके, वैसे तो कोई भी बता सकता है, बट लॉ स्टूडेंट्स के लिए इट वुड बी इजी वन. Let's come to the next question. On a close examination, the police officer found out that the documents provided by the landlord were fabricated. Very easy question. बहुत easy question है. तो fabricated का synonym क्या है? Genuine, historical, clear या forged? चारों ऑप्शंस में से एक fabricated का एंटोनिम है, एक सिनोनिम है, और बाकी के दो किसी भी तरह से ये इससे कनेक्ट करते ही नहीं है. What is the right answer? हाँ, स्लैंडर एंड लाइबल. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना स्लैंडर एंड लाइबल की? जस्ट मैंने एक और ट्रिक बता दी. आज मैं ट्रिक्स ही बता रहा हूं आज क्लास में. तो एक और ट्रिक, स्लैंडर साउंड्स लाइक स्लैंडियर. तो जो कान को एड्रेस हो वो स्लैंडर है, एंड समथिंग विच इज स्पोकन इज एड्रेस टू द ईयर. लाइबल में लाएबल, लाइबल आए आ रहा है, तो समथिंग विच इज एड्रेस टू द आई. जब कुछ लिखते हैं तो आंखों को एड्रेस होता है. सो अ रिटन स्टेटमेंट विच इज एड्रेस टू द आई इज लाइबल, एंड अ स्पोकन स्टेटमेंट विच इज एड्रेस टू द ईयर इज स्लैंडियर. आई थिंक ये ट्रिक काम आएगी एंड आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा. व्हाट इज द राइट आंसर है? पीपल आर सेइंग डी. एवरीवन इज सेइंग डी एंड द राइट आंसर है. इसमें मुझे उम्मीद भी थी कि सबका राइट होगा ही. फॉर्ज्ड इज द राइट आंसर. फैब्रिकेटेड मीन्स झूठा. Forged is also means, fabricated means inventing something in order to deceive. किसी को पागल बनाने के लिए अगर एक fabricated उसको deceive करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बना दिया गया है, then that document is called as fabricated or forged डॉक्यूमेंट. अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया भी कि forged का रूट वर्ड क्या है. forged कहां से आया है? forged came from that word, वो हमने पढ़ा था ना, चीटिंग का जो हमने पढ़ा था वर्ड एफ से ही, दैट वर्ड इज स्लिपिंग थ्रू ऑफ माई माइंड, उसी से फॉर्ज्ड है.
ओके, सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, द एक्चुअल लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़े थे क्वेश्चन, दे वर अ मिक्स ब्लेंड ऑफ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग. नाउ लेट्स कम टू द होल लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. तो कुछ क्वेश्चंस हम लॉजिकल रीजनिंग से डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल एंड दिस क्लास. बट इफ यू आर लाइकिंग दिस सेक्शन, तो एक बार लाइक करके प्लीज कीप मी मोटिवेटेड, लाइक करते रहें. चैट पर हम लोग बात कर ही रहे हैं, उसके बाद कमेंट्स में अपने डाउट्स यू कैन आस्क, उसका मैं आंसर और ग्रेडअप से आपकी टीम आंसर आपको करती रहेगी. आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज. मैंने अभी बात करते करते टाइम भी दे दिया स्टूडेंट्स को, तो दे आर राइटिंग डाउन द आंसर्स डी बी डी. बट हम एक बार देख लेते हैं. 8, 16, 64, 128. व्हाट इज द पैटर्न विच इज बीइंग फॉलोड? पीपल आर सेइंग बी, सम आर सेइंग डी. मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग डी इज द राइट आंसर. 16384 इज इट द राइट आंसर? इतना बड़ा कैसे? ओके, फिर सबसे पहले पैटर्न अंडरस्टैंड करते हैं. व्हाट इज द पैटर्न? इंटू 2 हुआ ना, 8 2 जा 16. नाउ इंटू 4 हुआ, 16 4 जा 64. देन इंटू 2, देन इंटू 4. 128 इंटू 4 इज 512. ओके, सो अब इंटू 2 हुआ है. 512 का डबल होता है 1024. तो नेक्स्ट आंसर जो होगा दैट वुड बी 1024 into 2. 1024 into 2. And the right answer is B, 4096. 4096 is the right answer. ये बहुत easy puzzle थी. I think इसमें आप लोगों ने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया होगा बिफोर मैंने आपको बताया उससे पहले. नेक्स्ट सीरीज 2, 6, 9, 27, 30, 90, 93. What will be the right answer? Can you identify that what is the analogy here? What is the pattern here? शबाना इज सेइंग ए, सिद्धार्थ बी, साहिल राजपूत 4096. हाँ, प्रीवियस वाला क्वेश्चन का वही था. अनन्या इज सेइंग बी. व्हाट इज द राइट आंसर? बी. मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग बी. लेट्स सी के राइट आंसर क्या है. पैटर्न क्या फॉलो हुआ है यहाँ पे? 2 इंटू हुआ या प्लस हुआ? मल्टीप्लाई हुआ या एडिशन हुआ 6 पे आने के लिए? वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 और एड इट विथ 4? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और एड. सिर्फ इतना बता दो कि 2 से 6 में आने के लिए वुड इट बी +4 और इंटू 3? +4 और इंटू 3. ओके, मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं. इट वुड बी इंटू 3. देन 6 से 9 पे आने के लिए हमने क्या किया? 6 से 9 पे आने के लिए इट वुड बी +3. 2 3 जा 6, 6 + 3 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 एंड 27 + 3 इज 30. तो हमें पैटर्न पता लग गया. इंटू 3 एंड +3 चल रहा है कॉन्जिक्यूटिवली. इंटू 3 +3, इंटू 3 +3, इंटू 3 33 जा 90 +3, 90 + 3 93. सो नाउ इट वुड बी इंटू 3. 93 इंटू 3 इज द राइट आंसर. इंटू 3 एंड +3 का मल्टीप्लाई एंड एडिशन का पैटर्न चल रहा है. इसी तरह पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है एंड देन वी हैव टू रीच टू द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज डी, दैट इज 279. 279 इज 93 into 3 is equal to 279 and that's the right answer. I hope पैटर्न समझ में आ रहा होगा. इस तरह से पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चंस आर नॉट वेरी टफ, बट हाँ, थोड़ा सा आपका अटेंशन तो मांगेंगे ये क्वेश्चंस. विदाउट अटेंशन यू कांट सॉल्व दीज क्वेश्चंस. फिल इन द ब्लैंक्स इन द सीरीज बाय लुकिंग एट द लेटर पैटर्न. अब यहां पे लेटर्स आ गए. ओके, उससे पहले न्यूमेरिकल्स थे. नाउ यू हैव टू फाइंड द पैटर्न इन लेटर्स. सेम ही है. इसमें आप ABCD करके नंबर्स भी दे सकते हैं, बट इतने इजी क्वेश्चन में तो उसकी भी जरूरत नहीं है. इससे जब थोड़े हार्ड क्वेश्चंस होंगे, सो आई वुड सजेस्ट आप ABCD कहीं रफ में लिख लें एंड उसको न्यूमेरिकल्स पहले से दे दें, सो दैट व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस इट वुड बी क्वाइट इजी. ST. ओके, सो व्हाट इज द राइट आंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल आर सेइंग C. शबाना, दीप, कुमार, सागर, चुनू, एवरीवन इज सेइंग C. सनी सेइंग C. व्हाई इट इज C? पैटर्न क्या है? S के बाद क्या आता है? T के बाद क्या आता है? U के बाद क्या आता है? V. तो आंसर वही होगा जिसका फर्स्ट वर्ड V से होगा. एंड यहां पे तो ऑप्शंस में सिर्फ फर्स्ट लेटर सिर्फ C का ही V से स्टार्ट है और किसी का स्टार्ट नहीं है. बट देयर माइट बी सम हार्ड क्वेश्चंस जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस में फर्स्ट लेटर V होगा. सो देन हाउ विल यू विल सॉल्व? फिर आप बीच वाले पे देखिएगा. C पैटर्न बीच में भी फॉलो हो रहा है. C के बाद D इज स्किप्ड एंड देन E के बाद F इज स्किप्ड एंड देन G के बाद H इज स्किप्ड एंड द राइट एंड H के बाद G H I यहां पे आएगा.
सिमिलरली हम पूरा राइट आंसर बिना ऑप्शंस के भी बता सकते हैं। अब हो सकता है कि क्वेश्चंस में ऐसा भी आए कि वी आई से 2 ऑप्शंस हो, तो फिर हमें थर्ड वाले पे भी आना पड़ेगा। डी के बाद ई एफ, फिर से एक स्किप हुआ एंड एफ के बाद जी स्किप हुआ, एच के पास आई स्किप हुआ, जे, तो वी आई जे। हम पूरे राइट आंसर पे विदाउट वॉचिंग द ऑप्शंस आ गए। हालांकि यहां पर तो आप स्मार्टली, बिकॉज यू हैव टू बैटल विद टाइम, तो आपको स्मार्टली देखना है। वी से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, देन दैट इज द राइट आंसर। आपको बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ बताया इन सम हार्डकोर क्वेश्चंस जिसमें ऑप्शंस ऐसे होंगे कि सभी वी से स्टार्ट होंगे, फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सी इज द राइट आंसर, वी आई जे। ओके, इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसके बाद वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास। सो एंड क्वेश्चन नंबर 27 हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। सो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एनर्जी लगाओ एंड आई विश, आई प्रे एंड आई बैग नहीं करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इस सबका राइट आंसर बताएं। हरीश वॉज लुकिंग थ्रू द फैमिली फोटोग्राफ एल्बम विच हैज अ फोटो ऑफ ईच ऑफ हिज पेरेंट। हरीश एक फैमिली फोटोग्राफ की एल्बम देख रहा था जिसमें उनके सभी पेरेंट्स की फोटो थी, उसके दोनों पेरेंट्स की। ईच ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल द वे टू ईच ऑफ हिज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो कितनी जनरेशन हो गई? पेरेंट्स हो गए, देन ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, मैं जीपी लिख रहा हूं फॉर शॉर्ट फॉर्म, देन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, जीजीपी, देन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, एंड लास्ट, हाँ तो यही हुआ ना, जनरेशन आर 1 2 3 4 5, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, सो 5 जनरेशंस हैं। हरीश एक क्वेश्चंस पढ़ लिए ना आपने। क्वेश्चन में क्या है? हरीश एक एल्बम देख रहा था जिस एल्बम में फोटोग्राफ्स थी उसके ईच ऑफ हिज पेरेंट्स जनरेशन 1, ईच ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स जनरेशन 2, ईच ऑफ हिज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जनरेशन 3, ईच ऑफ हिज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जनरेशन 4, एंड फाइनली ईच ऑफ हिज ग्रेट 3 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, दैट इज जनरेशन 5। जनरेशन तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई ना। जनरेशन 1 पेरेंट्स, जनरेशन 2 ग्रैंड पेरेंट्स, जनरेशन 3 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, जनरेशन 4 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, एंड फाइनल जनरेशन ट्रिपल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर? कि उस पूरे एल्बम में कितनी फोटोग्राफ्स थी? पीपल आर सेइंग 12, सम पीपल आर सेइंग ए 12 इज द राइट आंसर। ओके, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग 12। कैसे यार 12 कैसे? कुछ लोगों ने 10 भी बोला। आई कैन अंडरस्टैंड आपने 10 कैसे बोला, बट 10 इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। स्टूडेंट्स को लग रहा है कि 10 ऑप्शन में ही नहीं है, सो हाउ कैन, क्योंकि सम स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट 10 इज द राइट आंसर। वो पता है कैसे कह रहे हैं? 2 पेरेंट्स हुए, 2 ग्रैंड पेरेंट्स हुए, 2 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हुए, 2 ये हुए, 2 ये हुए। स्पाउसेस तो 2 ही होते हैं ना। 2 × 5 = 10। क्वेश्चन इतना ईजी नहीं है। 10 इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स मम्मी पापा को भी कहते हैं। मतलब हमारे नानी नाना क्या हुए? नानी नाना आर ऑल्सो ग्रैंड पेरेंट्स, दादी दादा आर ऑल्सो ग्रैंड पेरेंट्स। तो पेरेंट्स हमारे 2 हुए, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे 4 हुए ना। पेरेंट्स तो हमारे 2 ही हुए, मम्मी पापा। ग्रैंड पेरेंट्स कितने हुए? मम्मी पापा के मम्मी पापा, दोनों के ही मम्मी पापा, मतलब हमारे दादी जी दादाजी एंड नाना नानी, बोथ आर ग्रैंड पेरेंट्स। मदर के पेरेंट्स एंड फादर के पेरेंट्स, सो 4 हो गए। अब यहां पे ग्रेट पेरेंट्स कौन हुए? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हुए जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के फादर्स हैं, फादर एंड मदर। तो इन चारों के फादर एंड मदर 8 हो गए। फिर इन 8 के मदर एंड फादर 16 हो गए। इन 16 के मदर एंड फादर 32 हो गए। नाउ कैलकुलेट इट, दैट्स हाउ वी गेट टू द राइट आंसर। ग्रैंड पेरेंट्स की बात की है, लिखा नहीं है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स में पैटर्नल भी आएंगे एंड मैटरनल भी आएंगे। ओके, सो द राइट आंसर इज 62। 32 + 10 42 + 6 48, 48 + 2 50, एंड 8 + 4 12, दैट इज 60 + 12 इज, मैंने सॉरी वो किया है मैथमेटिकल एरर। 32 + 10 42, 42 + 6 is 48, 48 + 2 is 50, 50 and 12 is 62, so 62 is the right answer।
ग्रैंड पेरेंट्स में मदर के और फादर के दोनों के आएंगे, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में दादी और दादा दोनों के ही पेरेंट्स आएंगे, जितने भी दादी दादा नानी नाना चारों के। अंडरस्टूड? डाउट क्लियर हुआ? समझ में आया दैट हाउ वी गेट टू द राइट आंसर? ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन था एंड सभी ने रॉन्ग आंसर दिया जब तक मैंने राइट आंसर नहीं बताया। यस, डी इज द राइट आंसर। सो हम आज के सेशन में यही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। फ्रॉम द इन द नेक्स्ट सेशन पार्ट 3 वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड हियर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। ग्रेडअप ने अपना न्यू बैच 3 स्टार्ट किया है फॉर क्लैट प्रिपरेशन, क्लैट 2022 विच इज द फाउंडेशन बैच। ओके, एंड इस बैच में क्लैट 22 का एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स हो रहा है जिसमें ऑल दीज फैकल्टीज दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन, अगर हम चारों का एक्सपीरियंस कंबाइन अप कर दें, दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 डिकेड्स। ओके, सो you have to you should okay, so it's a course made for you if you are planning for CLAT. You should subscribe to it and the classes are soon going to start. Okay, classes might start from next week. I'm not sure about the actual date, but this course had been launched. You need to reserve your seats because the seats will fill very fast. Okay, why take this course? Because experts will guide you and these experts, ये experts कहाँ से हैं? These experts are from NLUs. They are NLU alumni. Okay, all of them are NLU alumni. Okay, so these experts will guide you like a personal guidance. वो आपको personally भी guide करेंगे for all your queries. Day wise study plan, there would be a study plan that would be prepared by these NLU alumni. और क्योंकि वो वहाँ जा चुके हैं जहाँ आप जाने का target कर रहे हैं NLUs, so they will make your preparation effective, efficient and optimum. Your chances to qualify for NLUs would be multiplied by hundreds of times if you will subscribe to this course. All topics will be covered by live classes and quizzes. Okay, these experts जो हमने previous slide में देखे, they will provide you live classes as well as some quizzes on those topics for your revision. Okay, मैंने पहले डिस्कस किया था 3 P's, that was plan, प्रैक्टिस, प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। तो ये 3P फॉर्मूला के ऊपर ये कोर्स है जहां पे पहले आपको लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाएगा एंड देन आपकी प्रिपरेशन को क्विजेस के थ्रू प्रैक्टिस किया जाएगा। डेली क्विजेस भी होंगी। ओके, सो टू बूस्ट योर एक्यूरेसी, टू टेस्ट योर स्किल्स कि आप कहां स्टैंड करते हैं। दिस कोर्स विल इंक्लूड एवरीथिंग जो यहाँ पे लिखा है, 200+ लाइव क्लासेस। कोर्स ड्यूरेशन इज 14 months, दैट इज 1 year and 2 months. सो इट इज अ मैमथ कोर्स, बड़ा कोर्स है काफी। इफ यू आर इन 11th एज वेल इफ यू आर इन 12th में भी, इफ यू आर प्लानिंग फॉर ड्रॉप, अगर आपका क्लैट इस बार नहीं होता है, सो इफ सम अदर बैचेस, बैच 4 बैच 5 स्टार्ट हो, तब आप इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट इफ यू आर इन क्लास 11th देन इट्स अ कोर्स मेड फॉर यू, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर क्लैट को फोकस कर रहे हैं। 80+ full length mocks. Okay, mocks would be online and you will be provided PDF format as well. 150+ sectional tests for CLAT, ALET and other law entrance examinations. 1000+ practice questions, topic quizzes and PDFs for revision and full coverage of current affairs and legal reasoning. ये सब इस कोर्स के अंदर all inclusive होगा। So if you want to take, आप ग्रेडअप का सुपर ऑफर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं 18 months, 6 months एंड 1 month के लिए। अगर आपको सिर्फ ट्राई करना है तो आप पहले फर्स्ट मंथ के लिए देखें। इफ यू फाइंड इट कंपैटिबल एंड वैल्यू फॉर मनी, देन आप इसको 6 months या 18 months पे अपग्रेड करा सकते हैं। ओके, सो इट्स द लास्ट स्लाइड। ग्रेडअप की टैगलाइन चेंज हो गई है। सही प्रेप है तो लाइफ सेट है, और ये बिल्कुल सही भी है। इफ द प्रिपरेशन इज सही तो लाइफ तो सेट है ही। ओके, सो विद दिस टैगलाइन, सही प्रेप है तो लाइफ सेट है, वी आर एंडिंग दिस सेशन। Good night and hope to see you soon in